Hello students. So as you know, we are reading chapter Weathering the Storm in Edzama. So we had read about how Prashant reached his village and he found that his house was not standing there. It was badly destroyed by the floody water. He could find his household items hanging twisted in the tree branches, and he thought of going to Red Cross shelter. Red Cross, a charitable organization that provide health and care services, relief camps during the time of disaster or natural calamities. So when he reached there, he found his family members. First of all, he found his maternal grandmother, his nanny, then other family members. Although they were in a very bad condition, but he found all of his family members. Now we will start from the next page. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. So by the next morning, as he took in the desperate situation, as he evaluate the desperate situation, sad and hopeless situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. To get a grip over himself means to get ready oneself, okay, to get prepared oneself. जैसे हम बोलते हैं कमर कसना, तो उसको लगा कि उसको ही आगे बढ़ के कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा. जब उसने लोगों की हालत देखी, so he sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. Okay, तो शेल्टर कैंप में कितने लोग थे? 2500 लोग थे. And there was deathly grief spread over them. Deathly grief, immense sadness. All of them were immensely affected. Okay, 2500 people were staying in that shelter, and 86 lives were lost in the village, and all the 96 houses, they had been washed away. 96 houses. All the houses had been washed away, and it was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconuts. अब तक तो वो green coconuts खा के survive कर रहे थे. But there were too few to go around such a tumult of people. Okay, पर वहाँ पे ऐसे लोग बहुत कम थे. ऐसे कोकोनट्स बहुत कम थे इतने ज़्यादा लोगों के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो इतने ज़्यादा लोगों के लिए, इतने क्राउड के लिए, इतनी अप्रोरिंग क्राउड के लिए, ठीक है, क्राउड, दैट वाज अ डिस्टर्ब्ड क्राउड, दैट्स व्हाई ट्यूमल्ट वर्ड हैज़ बीन यूज्ड. तो लोग ज़्यादा थे और कोकोनट्स बहुत कम बचे थे. सो प्रशांत, ऑल ऑफ 19 years, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज. प्रशांत जो सिर्फ 19 years का था, उसने ये डिसाइड किया कि he would become leader of his village because he wanted to help the people. If no one else did, कि अगर और कोई भी नहीं आता वो तो आगे आएगा. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. तो उसने अपने साथ एक ग्रुप ऑफ यूथ, यंग लोग और एल्डर्स, बड़े लोग, सबको साथ मिले के एक ग्रुप बनाया और मिलके प्रेशराइज करा जो गांव का मर्चेंट था, जो ग्रोसर था, जो राशन वाला था, वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस. उसको दोबारा से रिक्वेस्ट करी कि अपना राइस वो दे जो उसने स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था. एंड दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड. ओके, इस टाइम ये जो ग्रुप वहाँ पे मीटिंग करने के लिए गया था, उनसे रिक्वेस्ट करने गया था, उनको सक्सेस मिली, बातचीत जो सक्सेसफुल हुई. एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली मीन्स विक्टोरियसली, उनको जीत मिली. एंड वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, वॉकिंग थ्रू द
लेसनिंग वाटर, अब जो वाटर कम हो रहा था, विद फूड फॉर द इंटायर शेल्टर, सबके लिए वो फूड लेके आए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, किसी ने ये नहीं देखा कि राइस ऑलरेडी गल सड़ रहा था। एंड ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, ब्रांचेस को, जो गिरे हुए ट्रीज थे वहां से ब्रांचेस को लिया गया, टू लाइट रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। अब स्लो फायर क्यों थी, रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग क्यों थी, क्योंकि सब कुछ गीला था, लकड़ियां वेट थी, तो नेचुरली आग जलाना बड़ा मुश्किल काम था। जैसे भी जितना भी जला पाए तो उस पे उन्होंने जलाया और खाना बनाया। सो ऑन विच टू कुक राइस, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स at the cyclone shelter were able to fill their bellies, to fill their stomachs. So his next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. अब उसका नेक्स्ट काम क्या था, पूरे शेल्टर की सफाई करवाना। इसके लिए उसने एक टीम बनाई यंग पीपल की, वॉलंटियर्स जो अपनी इच्छा से आगे आए, ठीक है। और फिल्थ, हर तरफ गंदगी थी, यूरिन था, वॉमिट्स थी, डेड बॉडीज फ्लोट कर रही थी, तो कोई और महामारी, कोई और एपिडेमिक स्टार्ट हो सकता था, तो वहाँ पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। एंड टू टेंड टू द वुंड्स, और वो उसने अपनी टीम किस लिए बनाई, जख्मी लोगों के जख्म को अटेंड करना, ठीक है, उनके घाव पे पट्टी करना, एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड, घायलों की देखभाल करना, ठीक है। इसके लिए उसने इन कामों के लिए टीम बनाई। ऑन द 5th day अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। 5th day military helicopter came there and dropped some food parcels. It then did not return, पर दोबारा नहीं आया। The youth task force gathered empty utensils. उन्होंने क्या करा, जो ये टीम बनी थी, यूथ टास्क फोर्स थे, इन्होंने खाली बर्तन इकट्ठे करे फ्रॉम द शेल्टर। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दिस यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टोमक्स। बच्चों को लेटा दिया और उनके पेट के ऊपर वो बर्तन रख दिए ताकि ऊपर से हेलीकॉप्टर्स को नजर आ जाए कि ये लोग खाना मांग रहे हैं। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि उनके तक उनकी बात पहुंच सके। So the message got